नमस्कारम टू ऑल। आप सभी का आज के इस सत्र राजयोग विद योगीराज में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज फिर से हम सभी राजयोग हुए हैं और जैसा कि हम राजयोग की कड़ी को हर रविवार को मिलकर के आगे बढ़ाते हैं, आज भी बढ़ाएंगे। और आज के इस सत्र को लेने के लिए हमारे बीच में डॉक्टर राजेश राज योगीराज जी गुरु जी उपस्थित हैं। तो मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि आज के इस सत्र की शुरुआत करें। गुरु जी। प्रणाम, अभिनंदन, वंदन आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। टुडे अगेन वी आर गोइंग टू डीप डाइव इन Yoga Sutra, Raj Yoga, and as per our previous discussion, Raj Yoga needs practice. Raj Yoga needs not only a common understanding, but Raj Yoga need a proper practice too. राजयोग समझने का विषय नहीं बल्कि वृत्तियों का निरोध है। हम प्रयास करते हैं कि हमारी वृत्तियां शांत होती चली जाए और उसके लिए हमने पहले जो सूत्र देखे थे उन सूत्रों में अभ्यास और वैराग्य की बातें थी। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि अपने जीवन में हम राजयोग का अभ्यास प्रयास कैसे कर सकते हैं। राजयोग को, जिसको रॉयल पाथ राजमार्ग कहा जाता है, उस राजमार्ग पे हम कैसे चल पाए। जब आपके सामने दो रास्ते हों, एक राजमार्ग और एक संकरा मार्ग। संकरा मतलब बहुत छोटा गली, मतलब हाईवे की सड़क हो तो हम गलियों से क्यों जाएं, गलियों में क्यों सफर करें। पतंजलि योग सूत्र आपको जीवन का राजमार्ग देता है और हमें ये बताने की कोशिश करता है कि तुम किन गलियों में फंसे पड़े हो। ये राजमार्ग है, ये कोई ऐसी विधा नहीं है जिसमें कि आपको सिर्फ तपस करना है। तपस उतना भर करना है कि आप मार्ग पे आ सके, आप गली छोड़ करके हम हाईवे पे आ जाए, बस उतना भर। दिस इज अ प्रैक्टिस। Raj Yoga makes you from the streets to the royal path. We are wandering in the streets, from this street to that street, and these streets have so many disturbances. It is not easy. We know all our life how difficult it is because we took our life in the streets. Raja Yoga teaches the royal path, the highway path. Just what we have to practice is how to move from the street to the highway. And this is how the first thing what Raja Yoga states to you, that whatever the mental pattern, the thought pattern, the mental modification is there inside you, whatever we say, the vrittis, the 5 types of vrittis, relax it. And by the two basic methods, Abhyasa and the Vairagya. In the last my classes, I explained it, and today I go further. Before we go further, let's do 10 minutes of the practice. हम लोग अभी 10 मिनट का अभ्यास करेंगे। सभी लोग स्थिर होकर के बैठ जाइए
Now, all of you, please sit in a comfortable meditative posture. Make your spine straight, head and spine in a straight line, eyes gently closed. Now, take few deep breaths in and out and get ready for the Raj Yoga meditation. Make your body completely still and calm without movement. पूरे शरीर को स्थिर और शांत कर दीजिए. आपका पूरा शरीर बिल्कुल शिथिल और शांत. अब धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने श्वास प्रश्वास पे लाएं. फोकस करें अपने श्वास प्रश्वास को. Focus on your breath. Feel your breath. Now bring your awareness to your senses. The sense of smell. Become aware of the sense of smell. There is always some smell around you in the environment. Become aware of it. Now we follow some mental pattern. Just imagine, visualize some smell you don't like. Just visualize for a while. And then again, just oppose it. Visualize the smell you like most. Feel you are the drashta. You are the seer. Neither you are smell or good or bad. You are watching the smell as a smell. Now switch your awareness to second indriya, that is the taste. Bring your awareness to your tongue. Watch any taste in your mouth. You have thousands of taste buds in your tongue, and there is always some taste in your mouth, even you ate something just before or not. Become aware of that. Now, just for a while, visualize the taste you don't like.
And again, visualize the taste you like most. In the both ways, make yourself as a drasta. Neither you are good taste, neither you are bad taste. You are the spectator, you are the observer, you are the witness. Now move your awareness to the third sense organs, that is your eyes, the vision. Watch if you can feel any color or any shape, shades behind your eyes. With the closed eyes, whatever you can feel, you can see, just become aware of it. It could be color or shades of the colors, or maybe darkness. Now switch your awareness. Now visualize. Visualize the color you don't like, the shapes, colors, shades you don't like. Just for a while, visualize any shape, any any type of shape, size, colors. Now, just opposite, visualize those colors, any shape, size, or any type of picture, pictorial version you like most. You like it, you wanna see it, you wanna watch that type of color or any type of pictorial version. Remember, you are the observer, you are the seer, you are the witness. Now move to the next sense, that is the sense of touch. Feel the touch in all over your body, the touch of air to your body, the touch of clothes to your body, even your body parts touching each other. Become aware of those body parts.
Now, from here, visualize those type of touch you don't like. Maybe whenever you get hurt, scratch, or any type of other touch which makes you not happy. Uncomfortable. Just go opposite and visualize those type of touch you like, you want. Just opposite. Become observer. You are the seer. You are the witness. Now move to the sense of listening. Listen the sounds coming from outside. Don't just stick with any sound. Move your mind from one sound to another sound. Now from here, visualize, imagine the sounds you don't like. And now visualize those sounds you want to hear. So melodious, whatever you want to listen those sounds. You are the witness. Now back to your body. Feel the weight of your body. Weight of your body against gravity. Visualize you are getting heavier and heavier so that you are merging in the ground. Now visualize just opposite.
You are become lighter and lighter, so light you can float in the air. Okay, now back to your breath. Leave this visualization, watch your breath. Now slowly and gently become aware of surroundings, externalize yourself. We are going to finish our meditation here. Before we finish, we will do a 3 Om all together. So take deep breath in. Repeat after me. Om Asato Ma Sadgamaya. Om Tamaso Ma Jyotirgamaya. Mrityormamritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Okay, now rub your palms and place your palms over your eyes and gently open your eyes. वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों का पुनः स्वागत है। आज का अभ्यास राजयोग का वह अभ्यास है जिसमें हम प्रत्याहार करते हैं। प्रत्याहार का अर्थ है कि हम धीरे धीरे सही आवाज या अच्छी मन लगने वाली आवाज या बुरे आवाज, बुरे स्पर्श या अच्छे स्पर्श, चाहे बुरा जो दृश्य है या अच्छा दृश्य है, जो गंध या स्वाद हमें पसंद है या नापसंद है, हम इनसे धीरे धीरे ऊपर उठते हैं। पसंद, नापसंद, अच्छा और बुरा जितने भी विशेषण हैं, they are adjectives. They are adjectives. The good smell, the bad smell. Good and bad is what? The adjectives. जितने भी adjectives हैं, this is created by your mind, your psychology, your personality, your mental pattern, your conditioning of your mind. किसी के लिए वो दृश्य अच्छा हो सकता है और किसी के लिए बुरा भी हो सकता है। ये निर्भर करता है कि आपकी मानसिक संरचना कैसी है। और जब हम वैराग्य की बात करते हैं, वीतराग की बात करते हैं, तो वीतराग वो अवस्था है जहां पर हम इस मेंटल पैटर्न से मुक्त होते हैं। वी गेट फ्री फ्रॉम दीज मेंटल पैटर्न, वृत्तियों से फ्री होते हैं और वृत्तियों से फ्री होकर के हम
अपने भीतर एक दृष्टा भाव को उत्पन्न करते हैं। वी डेवलप द ऑब्जर्वर, वी डेवलप दैट सीयरनेस, दृष्टा भाव। और जितना ज्यादा दृष्टा भाव आपका विकसित होता जाता है, उतना ज्यादा आप वीतराग को प्राप्त होते हैं। पिछली बार हमने वीतराग के विषय में बहुत कुछ चर्चा भी किया था। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं ताकि मैं आपको याद करवा सकूं कि पिछली बार हमने क्या चर्चा की थी। ये सारी बात हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और वैराग्य में हम लोग यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार, ये चार वैराग्य, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में समझने की कोशिश किए थे। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप लोग के एक दो प्रश्न मैं ले लेता हूं ताकि आप लोग ट्यून्ड अप हो जाएं कि हमें राजमार्ग पे कैसे चलना है। एक प्रश्न कल मुझे आया था सीमा जी का। सीमा जी पूछ रही हैं कि वैराग्य राजमार्ग कैसे हो सकता है? हाउ कम वैराग्य इज द रॉयल पाथ इन अ राजयोगा? हम यहां से शुरुआत करते हैं। ये बात तो देखो, अभी आप लोग सबको समझ में आ रहा है कि अगर हम वृत्तियों पे निरोध करें, मेंटल पैटर्न पे वर्क करें, तो वी ऑल एग्रीड, ओके, आप भी खुश हैं कि यस वी शुड डू समथिंग ऑन द मेंटल पैटर्न बिकॉज दिस इज समथिंग, दिस कंडीशनिंग इज समथिंग वी आर रियली सफरिंग फ्रॉम। अगर कोई राजमार्ग, कोई रॉयल पाथ हमें उसके तरीके बताता है, देन इट इज वेल एंड गुड, बट वाई वैराग्य? अभ्यास तो समझ में आता है। आप सुबह सुबह लगभग हर रोज हमारे योगाचार्य रोशन के साथ आप योगा करते हैं। रोशन आपको बढ़िया योगा कराते हैं, अभ्यास कराते हैं, आसन कराते हैं, प्राणायाम कराते हैं। तो अभ्यास तो हम करते ही हैं। आप भी कोई ना कोई और भी मेथड्स करते होंगे, कोई ध्यान की विधियां करते होंगे या ना करते हो, कोई भक्ति, पूजा पाठ, वटेवर। तो जब हम प्रयास कर रहे हैं, ये बातें तो ठीक है, हम प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारे लोग पूजा करते हैं, अलग अलग देवी देवता हैं, सब अपने इष्ट की उपासना आराधना करते हैं। दैट ऑल आर वेरी गुड, दैट कुड बी कंसिडर्ड एज अ रॉयल पाथ, क्योंकि वी आर डूइंग समथिंग टू रिमूव समथिंग, वी आर डूइंग समथिंग टू अचीव समथिंग, and it sounds great actually whenever you do asana, pranayama, any rituals, any type of religious activities or spiritual activities. When you act something, we learn from very childhood, we achieve anything when we act, and it is true. For your achievement, your action is needed, and that's why these exercises, these abhyasa, in which you make yourself stable,
in which you get steady in your pose, and when you do long term of practices, सतु दीर्घ काल निरंतरीय सत्कारा सेवितो दृढ़, जब आप बहुत लंबे समय लगातार अभ्यास करके आप अभ्यास में स्थिर होते जाते, ये राजमार्ग तो सबको समझ में आ गया कि हाँ गुरुजी, ये पतंजलि ने तो बिल्कुल सही कहा। पतंजलि का राजमार्ग समझ में आता है कि कुछ अभ्यास से कुछ प्राप्त हो सकता है। अगर कुछ युक्तियां मिल जाए, कुछ अभ्यास मिल जाए, तो हम कुछ अचीव कर सकते हैं। पर ये वैराग्य, वैराग्य क्यों चाहिए? वाई वैराग्य इज अ रॉयल पाथ, वाई वैराग्य इज नीडेड? हमें वैराग्य चाहिए ही क्यों? और ये रॉयल पाथ कैसे हुआ? कई बार तो वैराग्य या वैरागी लोग भिखारी जैसे मालूम पड़ते हैं। और सबसे ज्यादा समाज को यही डर लगता है कि किसी गुरु के पास जाने से कोई गुरु वैरागी ना बना दे। सबसे ज्यादा डर अध्यात्म से लगता है कि कहीं अध्यात्म हम अपनाएं और वैरागी ना हो जाए। और आप देखो इन वैरागियों की दुर्दशा, न ढंग के कपड़े हैं, न इनके पास खाने के लिए रोटियां हैं, भीख मांगते रहते हैं, और ना ही इनके पास कोई मकान है। आश्रमों में रहते हैं, धर्मशालाओं में रहते हैं, या कुछ नहीं मिला तो वैसे ही पेड़ वेड़ के पास रह गए, और आप इसको कहते हो रॉयल पाथ? हाउ कम? And I found it is a good question. Might be many of you have this question. आप लोग के पास ये क्वेश्चन है कि नहीं, ये आप बताओ मेरे को। बिल्कुल बिल्कुल है गुरुजी क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, तो इसलिए मैं चाह रहा था कि वैरागी को हम लोग इसको थोड़ा सा और डिटेल में जब तक समझेंगे नहीं, तो वैराग्य के साथ हम न्याय नहीं कर सकेंगे। तो वैराग्य को समझने के लिए हम फिर से एक बार वैराग्य की कॉन्सेप्ट पे आएंगे। वैराग्य न तो मुश्किलों में खुद को डालना है, वैराग्य का मतलब ये भी नहीं है कि आप कपड़े आडंबर कर लो, ना ही वैराग्य का मतलब किसी आश्रम में जाना है, ना ही वैराग्य का मतलब आप कुछ ऐसे असामाजिक व्यवस्था में रहो, ऐसे अनकंफर्टेबल या कहो डिसकंफर्टेबल माहौल में रहो। ऐसा भी वैराग्य का मतलब नहीं है। वैराग्य सुखों का त्याग नहीं है, या दुख को ओढ़ लेना नहीं है, तकलीफों को ओढ़ लेना नहीं है। इस बात को हमें आपको समझना होगा। जब इस बात को आप समझोगे तो फिर आपको क्लियर होगा कि एक्चुअली वैराग्य क्या है, हम जिस वैराग्य की बात कर रहे हैं वो क्या है। एक मिनट। सबसे पहली बात जो पिछले दिनों मैंने वैराग्य को लेकर के बताई थी, वैराग्य का मतलब हम अपने भीतर की वो प्रवृत्ति जिसमें हम उन चीजों में रस लेते हैं जो हमारे लिए हानिकारक है। आप इसको बहुत बहुत जितना डिटेल में इस पर मनन करेंगे आप, तो आप इसके अर्थ को समझते जाएंगे। वीत राग, ये टर्म है वीत राग। राग क्या है और वीत क्या है? राग का मतलब है अटैचमेंट। हम किस किस चीज से अटैच होते हैं।
हम किस किस चीज़ से तुरंत जुड़ जाते हैं, उसमें रस लेते हैं। राग का मतलब है जिन चीज़ों से आप जुड़ते हो, रस लेते हो, उसको राग कहते हैं, है ना। तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसमें आप रस लेते हो? रस लेने की प्रवृत्ति किन किन चीज़ों में होती है? जिन जिन चीज़ों में नशा होता है, जो जो आपके अंदर एडिक्शन डालते हैं, उन उन चीज़ों में हम रस लेते हैं। मेरी बात को बड़ा ध्यान से सुनना, गहरे में मनन करना। जिन जिन चीज़ों के प्रति हम एडिक्टेड होते हैं, उसमें हम रस लेते हैं। अब आप कहोगे कि जिनका एडिक्शन नहीं होता है हमें, जो हमें अकस्मात हम बिना एडिक्टेड कोई चीज़ खाते हैं, आप बहुत गौर से करना कि आप कैसे पहचानोगे कि किसी चीज़ में आपका एडिक्शन राग है या नहीं है। इसको पहचानने के लिए, जैसे आपको लगता है कि आप नमक से एडिक्टेड हो, नमक खान जो जो हम लोग सॉल्ट वट एवर वी ईट, आप कभी अपने खाने में नमक मत डलवाना। जब आप अपने खाने में नमक नहीं डालोगे और तभी भी आप बड़े आराम से खा लो, या आपको कोई परेशानी नहीं हो रही है, आपको कोई तकलीफ नहीं हो रही है, तो इज दैट मीन्स यू आर नॉट एडिक्टेड विद दैट सॉल्ट। पहचान क्या है किसी के एडिक्शन की? किसी के एडिक्शन से हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारी वो कंडीशनड हो जाती है। आपका घर का एक व्यक्ति बाहर चला गया, सारे घर के लोग उदास बैठ गए, दुखी हो। आपकी आदतें आपका एडिक्शन है। आप उस व्यक्ति के आदत में थे, आप उस भोजन के आदत में थे, आप उस प्रक्रिया के आदत में हैं। ये है आपका एडिक्शन। आपकी माइंड वैसी कंडीशन है कि रोज सुबह उठेंगे तो एक गर्म चाय आना चाहिए, और उस चाय में भी आपने कंडीशन डाला हुआ है कि इतना ही चीनी, इतने ही उसमें जो भी अदरक लौंग डालते हो, उधर ऊपर नीचे हो गया, अरे आज चाय में मजा नहीं आया, आज आज तो चाय बेकार ही हो गया। आप देखो कहाँ कहाँ पे आप कंडीशन हो, वेयर एक्चुअली वेयर यू आर कंडीशन, कहाँ कहाँ पे आप खोजोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आपने जिंदगी में एक खास पैटर्न बनाया हुआ है। उसी ढंग से आप ब्रश करते हो, उसी तरीके से आप स्नान करते हो, उसी तरीके से आप सोते हो। हाँ, आपको पता नहीं चलता है, लेकिन आप सोते भी हो खास पैटर्न से। ऐसा नहीं है कि आपको कैसे भी सोने को मिल जाए तो आप सो लोगे। यू नीड स्पेसिफिक कंडीशंस। मेरे एक मित्र हैं, और वो एक दो नहीं, 7 तकियों के साथ सोते हैं, 7 पिलोज। और आदत ऐसी है कि एक पिलो भी अगर कम हुआ तो उसको नींद नहीं आती है। और एक तकलीफ की बात है कि 6 ही पिलो मिला आज। किसी के घर गए, उस घर के उसने सारे पिलोज ले लिए। मेरे घर आए थे, मेरे पास 4 पिलोज था, मैंने एक और जुगाड़ किया किसी तरह से, 5 पिलो हुए। तभी भी दुखी दुखी थी, यार नींद नहीं आई, 5 ही पिलोज था, 7 चाहिए था। तो बताओ आप कैसे कैसे कंडीशंस बनाए हुए हो। आप कभी गौर से देखो तो आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में कितने व्यर्थ को हम ढो रहे हैं। व्यर्थ वो व्यक्ति नहीं है जिससे आप अटैच हो, वो वस्तु नहीं है जिससे आप अटैच हो। उस व्यक्ति वस्तु का एक अपना रोल है, प्रकृति में है तो
उसकी एक अपनी महत्ता है। मैं उसकी महत्ता को कम नहीं कर रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि आपने जो एडिक्शन डाली हुई है, आपने जो राग, जो आसक्ति क्रिएट की हुई है, इस आसक्ति की कोई आवश्यकता नहीं है। आप बिना आसक्ति के भी रह सकते हैं साथ में। आप कहोगे भाई कैसे रहेंगे साथ में? मैं अपने पत्नी या अपने पति या अपने बच्चे या अपने भाई बहन के साथ अगर आसक्ति ना रखूं, राग ना रखूं, अटैचमेंट ना रखूं, तो कैसे रहूंगा साथ में या रहूंगी? इसी को वैराग्य कहते हैं। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है कि आप अपने भाई बहन को छोड़ के चले जाओ, आप बच्चों को दूर कर दो अपने से, लेकिन उनकी आदतें आप पर ना हो, आप उनके द्वारा कंडीशनड ना हो। वैराग्य का कदापि अर्थ नहीं था कि आप परिवार को छोड़ दें या कुछ खास तरीके रंग बिरंगे कपड़े पहन लें। आज के डेट में सन्यासी कैसे कैसे कपड़े पहनते हैं, वो ज्यादा रंगीन नजर आते हैं। सन्यास का ड्रेस इस बात का प्रतीक था कि अब मेरे अंदर आसक्ति नहीं बची, मेरी जिंदगी के कलर सब धुल गए, नो कलर, कलरलेस। सन्यास के जितने भी ड्रेस के कलर्स हैं, एक्चुअली प्रतीक है कलरलेसनेस का। पर लोगों ने रंग बिरंगे कपड़े बना लिए। ध्यान रखना, हम अपने भीतर कहीं से भी कंडीशन को पैदा कर लेते हैं। अगर कोई गेरू पहनने वाला सन्यासी, कोई ब्लू पहनने वाला निहंग, कोई और रंग पहनने वाला और सन्यासी कोई दूसरा वस्त्र पहन सकता है? क्यों? दे आर कंडीशनड इन दैट। हम अपने आप को कंडीशनड करते जाते हैं अपनी परंपराओं से, अपनी व्यवहार से, अपने आसपास के लोगों से, नियम से। इसलिए योग में नियम आग्रह को भी परहेज करने के लिए कहा गया है। हम आगे चल के पढ़ेंगे। अभी जो आज हम आपको पर वैराग्य बता रहे हैं, अपर वैराग्य में जो हम लोग अभी ये 4 प्रकार का पढ़े, व्यतिरेक, यतमान, एकेंद्रिय, वशीकार, ये आपके इंद्रिय सुखों से वंचित नहीं करता है, पर सुख को जो आपने कंडीशनल बना रखा है कि इसी को सुख कहेंगे वरना नहीं कहेंगे, वरना सब दुख है, ये जो आपने हर चीज में कंडीशंस क्रिएट कर दिए हैं ना, उससे पार जाना है। उस कंडीशंस को परे करना है, वस्तु को परे नहीं करना है। अब आंखें देख रही है अच्छी चीज। मैंने सुना किसी सूरदास के बारे में, वो महाकवि सूरदास नहीं, कोई सन्यासी, अंधा सन्यासी, उसने केवल अपनी दोनों आंखें इसलिए फोड़ ली थी, खुद से फोड़ लिया था, कि उसे लगा कि आंखें ही स्त्रियों को देखती है और उसकी वजह से वासना होती है। स्त्रियों को देखने वाला आंख है और उससे उत्पन्न होती है वासना, तो उसने अपनी आंखें फोड़ दी। क्या आप इसको वैराग्य कहोगे? क्या वो वास्तव में मुक्त हो गया वासनाओं से, स्त्रियों से? वो तो बस इंद्रियां हैं, आंख बस केवल इंद्रियां हैं। आपने आंखें फोड़ ली। लोग घर छोड़ के भागे जा रहे हैं वैराग्य के नाम पे। घर छोड़ के भागना वैराग्य नहीं है। मैं बार बार इस बात को, जितना आप डीपली मनन करोगे, वैराग्य सुनते ही जो हमारे अंदर कॉन्सेप्ट आता है ना, वो गलत आ जाता है। वर्षों से हमने उन परंपराओं को देखा है जो वास्तव में वैराग्य को फॉलो ही नहीं करते।
वैराग्य का आपका एकांत रहने से अर्थ नहीं है। हाँ, भीड़ में आप अपने आप को अलग कर लें, उससे मतलब है। आप भीड़ का हिस्सा ना होकर के, भीड़ में होकर के भी स्वयं में बने रहें, वो वैराग्य है। आप जो कर्म कर रहे हैं उस कर्म में आसक्ति ना हो करके आपका कर्तव्य हो, तो आप वैरागी हैं। आप किसी कंडीशन में नहीं फंस रहे हैं कि अच्छा स्मेल आ रहा है, बुरा स्मेल आ रहा है, अच्छा स्वाद आ रहा है, बुरा स्वाद आ रहा है। यू आर अ ऑब्जर्वर, यू आर अ दृष्टा। आप समझो इस बात को। दृष्टापन को विकसित करना, अपने भीतर के ऑब्जर्वर को विकसित करना, ये है वैराग्य। वैराग्य बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप क्या खाते हो, क्या पहनते हो, आपके पहनने का चुनाव क्या है, खाने का चुनाव क्या, और क्या फर्क पड़ता है। आपने चुन लिया शाकाहारी खाना और कंडीशन बना ली। कितने लोग भारत में शाकाहारी हैं? क्या सबके सब सात्विक हो गए? सबकी मानसिकता सात्विक है? आप कभी जाकर के ना अखाड़ों में जाकर इन साधुओं के साथ बैठना, आपकी साधुओं के साथ, क्या ये सात्विक हैं? क्या फर्क पड़ता है? आपने कोई एक कंडीशन छोड़ के दूसरे कंडीशन को ऑप्ट कर लिया। जीवन का एक तरीका था, उसको छोड़ के जीवन के दूसरे तरीकों को अपना लिया। आप बहुत खुश थे, बहुत रईशी से, बहुत अमीरी से रह रहे थे। अचानक आपके अंदर सो कॉल्ड वैराग्य आया और आप जाके आश्रम में रह करके सब कुछ दान करके गरीब हो गए। अमीर से गरीब बन गए, गरीब से अमीर बन गए। एक जीवन के लाइफ स्टाइल में चेंजेस हुआ। एंड एल्स व्हाट? आपने फिर से एक चुनाव कर लिया, एक नया चुनाव कर लिया आपने। बात, वैराग्य की बात तो वो होती जब आप चुनाव रहित हो जाते। हम चुनाव रहित कहाँ हुए? हमने नई तरह की कंडीशन शुरू कर दी। हम खुद अपनी बात बताते हैं आपको। एक समय मेरे अंदर भी था कि मैं घर से भाग करके हिमालय पहाड़ जाऊं और वहां चुपचाप से साधना करूं। मेरे किशोरावस्था की कहानी है कि एक समय मेरे अंदर इसका, समझो, सर पे भूत था और मैं घर छोड़ के निकल गया। और और पास के किसी जंगल में जाकर के मैंने सोचा कि यहीं पे कुछ दिन रहेंगे, यहीं पे अपना वो सब गुजर बसर करेंगे। ये और बात, में 10 दिन से ज़्यादा रह नहीं पाया। 13वें 14वें दिन लौट आया। उसकी कई बातें हैं, लेकिन अब मैं उन दिनों को याद करता हूँ तो मैंने क्या किया था, मैंने कोशिश की थी कि जहाँ रह रहे हैं उसी को हम परिवार बना लें। मैंने आसपास के पेड़ पौधों को नाम दे दिया था और मैं उस नाम से उस पेड़ों को बुलाता था। मैंने आसपास के जो भी चीज़ हमें दिखाई सुनाई पड़ता था उसके साथ मैंने एक समाज को क्रिएट कर दिया था। जिस चीज़ को, जो घर मैंने महसूस किया था घर में, उस घर को मैंने बाहर बनाने की कोशिश की थी। ये वैरागी आपके सो कॉल्ड सन्यासी कर क्या रहे हैं? आश्रम को घर बना लिया उन्होंने। एक टाइप ऑफ होम हो गया, एक डिफरेंट टाइप ऑफ होम हो गया। इसके अलावा क्या है? कौन सा रॉयल पाथ पे आप चल गए? कौन सी वृत्तियां आपकी नष्ट हो गई? वृत्तियां तभी भी है। स्वामी शिवानंद की जीवनी में एक कथा है कि स्वामी शिवानंद और उनके बहुत प्यारे एक भक्त थे, कोई सेठ थे, सेठ दीनानाथ, और सब लोग और बैठे हुए थे। और दीनानाथ की जो एक तकिया कलाम थी प्रॉपर, जो अक्सर वो लोगों कहते थे कि मैंने लाखों की संपत्ति को लात मार दी। भोजन कर रहे थे
पहले पंगत में बैठ करके पत्ते की थाल में भोजन करने की आश्रमों में परंपराएं थी। अब तो धीरे धीरे ये भी परंपराएं जा रही है। एक व्यक्ति खाना लगा रहा था और गलती से उस व्यक्ति ने गरम गरम दाल ऐसा डाला कि वो पत्तल से छलक के उसके पैर पे गिर गया और अचानक सेठ का सारा वैराग्य हवा हो गया। और सेठ जो है वो बिगड़ के कहते हैं कि तुम्हें पता भी नहीं है तुम क्या कर रहे हो, होश में नहीं करते हो, बिल्कुल बेहोश रहते हो। तुम्हारे जैसे मेरे 50 नौकर थे, मैं लात मार के आया, लाखों की संपत्ति थी, तुम जैसे आगे पीछे होते थे। ठीक बगल में स्वामी जी बैठे हुए, स्वामी शिवानंद जी ठीक बगल में ही बैठे थे। जब उन्होंने पूरा गुस्सा निकाल लिया तो स्वामी जी धीरे से बोलते हैं कि सेठ जी आपने ठीक से लात नहीं लगाई। तो हम वैराग्य तो ले लेते हैं, सो कॉल्ड संन्यास ले लिए, पर वास्तव में अपने भीतर में कुछ कलरलेस हुए। सारे कलर्स तो तब भी मौजूद हैं। ये देखो अपने गुरुओं को, अपने सन्यासियों को क्या क्या कांड करते हैं। कोई राम रहीम बन जाता है, कोई आशाराम बन जाता है। इनके इनके कर्म तो देखो। ये सब सन्यासी अपने आप को कहते हैं। कुछ कुछ बदलाव भीतर में कुछ बदला नहीं है। भीतर में वैसे ही सब सारी गंदगी भरी पड़ी है। आप कहते हो ये सन्यास है, ये वैराग्य नहीं है। आपको एकेंद्रिय होना होगा, आपको वशीकार होना होगा। तृष्णानुसर्ग वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। हम दृश्य और दृष्ट और अनुश्रविक, हम दोनों ही स्थितियों में अपने आप को उससे वितृष्णा होते हैं। आपको याद हो मैंने आपको बताया था अनुश्रविक और दृष्ट। दृष्ट मतलब जो पूरी दुनिया में दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। अनुश्रविक जो दिखाई तो नहीं पड़ता है लेकिन अनुभव होता है। इसमें भी मैंने बताया था शरीरांतक वेद्य और अवस्थांतरण वेद्य। शरीरांतक वेद्य क्या होता है? जो आपके शरीर की डिफरेंट डिफरेंट दशा है, आप आज जिस दशा में इंद्रियों को महसूस कर रहे हैं, हो सकता है समाधि की अलग अलग दशाओं में आप शरीर के और इंद्रियों के अनुभवों को अलग अलग महसूस करें। उसको कहते हैं शरीरांतक वेद्य। कभी हो सकता है स्वर्ग को अनुभव करें, कभी हो सकता है वैकुंठ को अनुभव करें। तो जब आप अपने शरीर से अलग अलग लोकांतरों को अनुभव करते हैं तो उसको कहते हैं अनुश्रविक। और जब आपकी अवस्था बदलती है चेतना की, चेतना के अलग अलग अवस्थाओं में जो चीज अनुभव होता है उसको कहते हैं अवस्थांतर वैद्य। ये अनुश्रविक है। ये अनुभव करते हैं आप अपने शरीर से और अपनी चेतना से। और इन दोनों के प्रति वितृष्णा, वितृष्णा मतलब क्या होता है? वितृष्णा का मतलब छोड़ देना नहीं है कि छोड़ के भाग गए हम, है ना। ये भगड़ों वाली बात नहीं है, छोड़ के भागने वाली बात, छोड़ने की बात हम नहीं कर रहे, वितृष्णा की बात कर रहे हैं। वितृष्णा मतलब तृष्णा जिसमें ना हो, जिसमें प्यास ना हो। प्यास ना हो इसका मतलब थोड़ी होता है कि हम पानी को श्रद्धा के लिए छोड़ दिए। अगर हम कह दें कि मुझे प्यास नहीं लगी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने पानी का त्याग कर दिया है? नहीं ना, नहीं, ऐसा ऐसा तो नहीं मीनिंग है। त्याग की बात नहीं है यहाँ पे। त्याग किसका है? वो रस का है, वो प्यास का है, वो तृष्णा का त्याग है, वस्तु का त्याग नहीं है। आपके कपड़े रोटी मकान का त्याग नहीं है, आपके भाई बहनों का त्याग नहीं है। त्याग है उस कंडीशन माइंड का। अब सवाल उठता है कि हम कंडीशन करें क्यों माइंड को, माइंड के कंडीशन को छोड़े क्यों? वाई टू लीव दिस कंडीशनिंग? इस कंडीशन को बने रहने देते हैं, क्या दिक्कत है? जो है जैसा है बने रहने देते हैं।
अभ्यास करते हैं केवल। हमारे योगाचार्य रोशन जी करा रहे हैं अभ्यास दबा करके, करते हैं अभ्यास ही। क्या जरूरत है ये कंडीशन कंडीशन दूर करने की, जरूरत क्या है? अभ्यास जम के करते हैं, सब कुछ बदल जाएगा। उसमें जो समस्या है, इसलिए पतंजलि अभ्यास और वैराग्य दोनों को महत्व दे रहे हैं कि अभ्यास अपने आप में अकेले पर्याप्त नहीं है। अभ्यास के साथ आपके भीतर की कंडीशनिंग भी दूर करनी पड़ेगी। वो कुछ ऐसा ही है जैसे किसी आयुर्वेद डॉक्टर के पास जाते हो और आयुर्वेद डॉक्टर आपको दवाई देता है, कुछ जड़ी बूटी कुछ वैसा निकाल के, और कहता है भैया दही मत खाना, भैया बैंगन मत खाना, भैया पूड़ी मत खाना, तला छना नहीं खाना। तो कुछ अपना इंस्ट्रक्शन, जो भी इंस्ट्रक्शंस है, आपको लगता है कि आप वो छोड़ने वाली बात को, अरे छोड़ो, दही वही खा लेते हैं, बैंगन खा लेते हैं और दवाई लेते रहते हैं, तो दवाई का पूरा असर होगा? नहीं। वो जो कंडीशन बताते हैं कि नहीं भाई आप दही मत खाना, बैंगन, तो ये भी साथ साथ दवाई की आपको करना पड़ेगा, वो परहेज आपको करना पड़ेगा। आप में से कुछ लोगों के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये परहेज करना भी अपने आप में कंडीशन नहीं है क्या? वैराग्य होना भी अपने आप में कंडीशन नहीं है क्या? मैं समझ रहा था इस सवाल को कि आपके मन में आ रहा होगा। हाँ, ये कंडीशन है। लेकिन जिस प्रकार से धसे हुए कांटे को निकालने के लिए आपको एक अन्य कांटे की जरूरत पड़ती है, जिस प्रकार से भांति भांति के जो आपने कंडीशन बना रखे हैं, उस कंडीशन को हटाने के लिए आपको वैराग्य की जरूरत पड़ती है। वैराग्य से आप क्या करते हो? हाँ, ये मानते हैं कि रसों का त्याग करना, वितृष्णा हो जाना, ये भी एक कंडीशन है। थोड़ी गहरी बात है, लेकिन सोचना, ये भी एक कंडीशन है। लेकिन इसीलिए हमारे महर्षि पतंजलि ने दो प्रकार के वैराग्य रखे, अपर वैराग्य और पर वैराग्य। अपर मतलब नीचे वाला वैराग्य, और पर वैराग्य मतलब उसके परे, अबव, पर वैराग्य। ये दो प्रकार के वैराग्य। तो एक तो अपने आप को कंडीशन लेस करना है ना, अनकंडीशनल बनाना। अनकंडीशनल बनाना ये निचला वैराग्य है, लोअर, ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में अपर अपर कहते हैं। ये नीचे नीचे वाले को से हम कंडीशन लेस होते हैं, अनकंडीशनल होते हैं। लेकिन क्या सवाल ये है कि अनकंडीशनल होना भी अपने आप में एक आदत नहीं है? ये क्या मेंटल मॉडिफिकेशन नहीं है? क्या ये कोई गुण नहीं है? ये कोई एट्रीब्यूट नहीं है? आपने लोहे के पिंजरे का त्याग कर दिया, आपने तांबे के पिंजरे का त्याग कर दिया, पर सोने का पिंजरा तो तब भी है ही, पिंजरा तो पिंजरा ही है। आपने तमोगुण का त्याग करके रजोगुण को परिवर्तित करके सात्विक बना लिया अपने आप को, सात्विक, आप पूर्ण सात्विक हो गए, सत्वचित हो गए, सचित। अब ये सत्वचित यदि हो गए, आप सात्विक हो गए, तो क्या सात्विक अपने आप में गुण नहीं है? क्या सत्व गुण नहीं है? जैसे रजस गुण है, तमस गुण है, उसी प्रकार सत्व भी तो गुण है। तो क्या सत्व गुण नहीं है? क्या सत्व कंडीशनड नहीं है? क्या शाकाहारी हो जाना कंडीशन नहीं है? वैरागी हो जाना कंडीशनड नहीं है? आप बहुत गहरे में उतरोगे तो बात दरअसल ये है कि ये अनकंडीशनड होने के पथ में आगे बढ़ना है। जब हम वैराग्य होते हैं, अभ्यास और वैराग्य करते हैं, अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा अपने आप को कंडीशन लेस करते हैं, अनकंडीशनल करते हैं,
तो हमारे अंदर अनकंडीशनल की आदत पड़ती है। हमारे अंदर अनकंडीशनल होने की आदत पड़ती है, रस विहीनता की, वितृष्णा की भी आदत पड़ती है। ये अभी आपको शायद समझ में ना आए, बहुत गहरी है, बहुत अंदर की बात है। हमारे अंदर वितृष्णा की भी आदत आती है, बहुत सूक्ष्म है, बहुत सात्विक है, वेरी वेरी सात्विक, लेकिन आती तो है। अब इस सात्विक दशा से मुक्त होना, जब आप इस सात्विक दशा से मुक्त होते हैं तो उसको कहते हैं पर वैराग्य। ठीक है, तो पर वैराग्य का अर्थ है कि गुण प्रकृति, जो सारे सत्व गुण से भी वितृष्णा हो जाना, आपके भीतर जो सत्व गुण है उससे भी वितृष्णा हो जाना। तो इतना हायर, इतना हाई क्लास ऑफ वैराग्य से क्या होगा? पुरुष प्रकृति वेग ख्याति, पुरुष और प्रकृति का क्या होगा, ज्ञान होगा। तब जाकर के हमें पता लगता है कि पुरुष और प्रकृति दो दो सत्ताएं हैं, जिसके संयोग से ये पूरी प्रकृति बनी है। जब तक पर वैराग्य नहीं होता है, हमारे भीतर विवेक या ख्या की उत्पत्ति नहीं होती। विवेक ख्याति तभी उत्पन्न होता है जब हम पुरुष और प्रकृति को अलग अलग जान लेते हैं, अलग अलग जिनका पता लगता है, उसको कहते हैं विवेक ख्याति। और विवेक ख्याति जब पता हो जाता है कि ये पुरुष है, ये प्रकृति है, इसके संयोग से पूरी प्रकृति बनी है, इसके संयोग से पूरा इवोल्यूशन हुआ है, पूरी सृष्टि हुई है, और ऐसा अगर पता लग जाता है तो क्या होता है? तब कहीं जा करके हम मुक्ति पथ में आगे बढ़ते हैं और हमारा निर्वाण कह लो या निर्बीज कह लो, उस अवस्था की प्राप्ति होती है। पर वैराग्य से ही हम निर्बीज को जाते हैं, हमें मोक्ष मिलता है, हमें मुक्ति मिलती है। तो पर वैराग्य में हमको उस सात्विक दशा को भी छोड़ना पड़ता है, तीनों गुण से परे होना होता है, सत्व रजस और तमस तीनों गुण से फ्री होना पड़ता है। पहले तो हम अपर वैराग्य करके हम रजस और तमस से फ्री होते हैं, फिर पर वैराग्य करके हम सत्व से भी फ्री हो जाते हैं। जब हम तीनों एट्रीब्यूट से, प्रकृति के तीनों गुण से वितृष्णा हो जाता है, तब जाकर के विवेक ख्याति होती है, तब जाकर प्रकृति पुरुष का पता लगता है और हम मुक्त हो पाते हैं। ठीक है, तो ये वाला सूत्र मेरे पीछे आप बोलना, मैं आगे आगे बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप ये दोनों सूत्र बोलना। द्रष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा वैराग्यम। एक बार और दोहरा लीजिए। बहुत अच्छा, ये है अपर वैराग्य, दृष्ट और आनुश्रविक विषय से वितृष्णा हो जाना, और हमें वशीकार तक की संज्ञा की वैराग्य हमें मिल गई। फिर अब पर वैराग्य जो हायर वैराग्य है उस पे हम जाते हैं। तो 16वां सूत्र कहता है तत्परम पुरुषख्यातैर गुणवैतृष्यम। बहुत अच्छा। तत्परम पुरुष ख्यातैर,
तत् उसके बाद परम यानी कि पर वैराग्य क्या है? पुरुष ख्याति, मतलब हमें पुरुष का, आत्मा का पता लगता है, हमें आत्म साक्षात्कार होता है, हमें मुक्ति होती है, प्रकृति और पुरुष को अलग अलग समझ पाते हैं। पुरुष ख्याते, ख्या मतलब होता है ज्ञान होना, है ना? तो हमें पुरुष का ख्या होता है, ज्ञान होता है। पुरुष ख्याते गुण वैतृष्यम, तीनों गुण सत्व रजस और तमस, तीनों गुण से वितृष्णा होती है। वैतृष्यम मतलब वितृष्णा हो जाता है, वो रस विहीन हो जाता है, अनकंडीशनल हो जाता है। गुण अपने गुण में सिमट जाते हैं। सत्व सत्व में सिमट गया, रजस रजस में सिमट गया, तमस तमस में सिमट गया। तो गुण की विकृति नहीं रहती है, गुण अनकंडीशनल हो जाता है। तो गुण वैतृष्यम, गुणों से वितृष्णा हो जाती है, सारे गुणों से, सत्व रजस गुणों से ही वितृष्णा हो जाती है, प्रकृति के एट्रीब्यूट से ही वितृष्णा हो जाती है। वितृष्णा हो जाती है, इसलिए पुरुष का ख्याति होता है, और इसी को पर वैराग्य कहते हैं। पर वैराग्य से ही हमें परमात्मा की प्राप्ति होती है, हमें मुक्ति मिलती है, यही मंजिल है। और मंजिल प्राप्त करने के लिए हमको पहले अपर वैराग्य, उसके बाद पर वैराग्य, ये दो स्टेजेस पार, वैराग्य के दो स्टेजेस पार करने होते हैं। तो और हमने बताया कि अपर वैराग्य में ये चार है: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रीय और वशीकार। इसको हम पार करते हैं तब जाकर के पैर पर वैराग्य होता है। उसमें गुण के प्रति वैतृष्यम, गुण वैतृष्यम, और पुरुष ख्याते, पुरुष का ख्या, पुरुष का ज्ञान होता है, जिसको हम लोग विवेक ख्याति कहते हैं। विवेक ख्याति मतलब उसका विवेक होना, उसका ज्ञान होना, है ना? इसीलिए सांख्य शब्द क्या है? सम ख्या, ख्या मतलब ज्ञान होना, है ना? सम्यक ज्ञान होना, ख्या मतलब होता है ज्ञान। तो पुरुष का ज्ञान होना, पुरुषेर ख्याति। अब आपको हम समाधि के बारे में आगे बताएंगे कि जब पतंजलि ने वैराग्य और अपर और पर वैराग्य बता दिया, तो सवाल उठता है कि पर वैराग्य से हमें हमें किस प्रकार हमारी चेतना रूपांतरित होती है, या यूं कह लें कि इस वैराग्य से हम अपने वृत्तियों से कैसे मुक्त होते हैं। अभ्यास से तो फिर भी समझ में आ जाता है कि आप कुछ अभ्यास कर रहे हो, स्वयं को स्थित कर रहे हो अपने प्रयासों में, अपने यत्न में स्थित कर रहे हो। आप यत्न में, अपने प्रयासों में स्थिर होने को अभ्यास कहते हैं। और अनकंडीशनल होना, रसों की प्रवृत्ति छोड़ना, वो वैराग्य है। तो हम अगर ऐसा करते हैं अभ्यास और वैराग्य, तो वृत्तियों में निरोध किस प्रकार से होता है? वृत्तियों में निरोध जैसे जैसे होता है, उसको हम संप्रज्ञात कहते हैं, सम्यक प्रज्ञा। वृत्ति का अगेंस्ट में, अगर वृत्ति के विलोम में कोई शब्द है तो वो है प्रज्ञा। पर इस पर हम कल चर्चा करेंगे, संप्रज्ञात, अगली क्लास में, कि संप्रज्ञात क्या होता है, असंप्रज्ञात क्या होता है, असंप्रज्ञात के जो क्या क्या लक्षण हैं, जब हमारी वृत्तियां गिरती हैं, कमजोर पड़ती हैं, उसका निरोध होता है, अलग अलग प्रकार का वैराग्य हमारे अंदर उत्पन्न होता है। तो हम किस किस प्रकार के चेतना के अलग अलग अवस्थाओं को प्राप्त करते हैं, उसमें चार अवस्थाओं का हम जिक्र करेंगे आपको: वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता। इसके विषय में खूब डिटेल से बात करेंगे, और हम समझेंगे कि इन वृत्तियों के निरोध होने से हम किस किस प्रकार से हम अनकंडीशनल होते हैं, और कैसे कैसे हमारी चेतना में परिवर्तन होता है। पर आज का चर्चा इंपॉर्टेंट है कि हम राजयोग को गहरे में समझ सकें। राजयोग
का अर्थ ये नहीं है कि आप अपनी वासनाओं के साथ जिए, जिसको सो कॉल्ड सुख आप कहते हो, उस सुख को प्राप्त करें। और हम तो बड़ा आज राजयोग है, आज तो मेरा बहुत राजसी ठाट बात है। राजा का अर्थ होता है राजा जनक। अगर हमारे अध्यात्म में किसी को वास्तविक राजा की उपाधि मिली है तो वो राजा जनक को मिली है। राजा हो जो जनक जैसा हो। अब क्या खासियत है, जैसे दान में हम बलि का नाम लेते हैं या कर्ण का नाम लेते हैं, वैसे ही राजा में हम या तो जनक का या तो गौतम बुद्ध का, ये दो ही राजा, राजा के नाम पे दो ही हुए। या तो आप राजा जनक का नाम ले लो या गौतम बुद्ध का नाम ले लो। पहले हम राजा जनक से बात करते हैं। राजा जनक, जब भगवान विष्णु ने नारद को कहा कि हमारा सबसे प्रिय भक्त राजा जनक है, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए नारद विष्णु की बात सुन करके वो राजा जनक के पास गए। और राजा जनक बड़े राजसी ठाट बाट से उन्होंने नारद को बैठाया और भोजन के लिए उनको आमंत्रित किया। जब नारद भोजन कर रहे थे तो राजा जनक को तो सब पता था कि नारद क्यों आए हैं, ज्ञानी थे, महात्मा थे। उन्होंने उनके सर पर एक तलवार टांग दी, जो इतना झीने धागे से बंधा था कि वो तलवार अब गिरा अब गिरा। और सारा राजसी भोजन एकदम टेबल पे लगा दिया, एकदम 56 प्रकार के भोग ऐसे टेबल पे लगा दिए और सर पे एक तलवार भी टांग दिए। अब हर सेकंड नारद को लगा कि अब ये तलवार मेरे ऊपर गिरा, अब ये तलवार गिरा मेरे ऊपर। बेचारे जस तस भोजन खाए, भोजन में उनको स्वाद भी नहीं पता लगा होगा, उनको केवल डर का स्वाद लगा होगा और कोई स्वाद लगा नहीं उनको। वो भोजन तो कर लिया, पर हैरान परेशान होकर के वो विदेही राजा जनक से पूछते हैं कि हे क्षत्रिय शिरोमणि, आप ऐसा कैसे कर दिए हमारे साथ। तो उन्होंने कहा कि जिन्होंने आपको भेजा है वो भगवान विष्णु के लिए कह रहे थे कि यही ज्ञान मुझे आपको देना था। रॉयल पाथ ये नहीं है कि हम 56 प्रकार के भोग खा रहे हैं। जब हम कहते हैं राजसी जीवन या राजयोग, राजयोग तो तब है जब हम अपने कर्मों को कर्तव्य समझ के करते हैं। हमेशा कर्तव्य का तलवार हमारे ऊपर टंगा रहता है। आपको लगता है कि ये जितने करोड़पति, मिलेनियर, बिलेनियर्स हैं, वो एकदम आराम से बिस्तर पे सोए रहते होंगे? ज़्यादातर जो मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके अंदर में ऐसा सोच रहता है कि अगर आपके पास अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए तो ऐसे आप बेड पे ऐसे लेट करके टीवी देखते रहेंगे। अरे उनसे पूछो, उनको उतना धन संभालने के लिए ना एड़ी चोटी करनी पड़ती है। अगर आपके पास 5-7 कंपनीज हो जाए, कारखाने हो जाए, आपके पास संपत्तियां हो जाए, तो उसको जोहने के लिए भी आपकी रात की नींदें उड़ी होती है। वो बेचारे मेहनत करते हैं। दुनिया का कोई भी रईस आदमी बिना मेहनत का रईस नहीं बना है। लक ऑफ कोर्स साथ देता है, लेकिन वो मेहनत करते हैं, वो जीवट है, मेहनती है। मेहनत से उन्होंने सब कुछ पाया होता है। बिना मेहनत के तो वो परिश्रम, वो कर्तव्य भाव, वो मेहनत तभी आप कर पाओगे जब वो आपके भीतर वो कर्तव्य भाव आएगा। वही तलवार टंगा रहता है। तो राजसी जीवन का मतलब होता है कि हम अपने कर्तव्यों के साथ,
एक वैरागी व्यक्ति ही महान बनता है, चाहे वो संसार में महान बने। अगर आपको मिलेनियर बिलेनियर बनना है तो आपको वैरागी होना ही होगा। आपको संसार में कुछ पाना है तो आपको वैरागी होना ही पड़ेगा। आप कंडीशन रहोगे तो जिस कंडीशन में आप हो उसी में बने रहोगे। अगर आप गरीब हो तो गरीब बने रहोगे, क्योंकि उस गरीबी को छोड़ने के लिए आपको इस कंडीशन को छोड़ना पड़ेगा। अनकंडीशनल होना होगा, आपको वैराग्य होना होगा। इसलिए देखो, ये जो मेहनती लोग हैं, ये रात रात दिन दिन मेहनत करते हैं। इनको ना भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना कपड़े की सुध रहती है। कठोर मेहनत करते हैं, तब जाकर के वो रईस बन पाते हैं, अमीर बन पाते हैं, है ना। और कठोर की सीमाएं क्या है? कठोर की सीमाएं नहीं कि आप पहाड़ उठा रहे हो। कठोर का मतलब ये नहीं है कि यू आर डूइंग समथिंग विच इज बियॉन्ड ऑफ योर कैपेसिटी। इट इज जस्ट अबाउट यू आर ब्रेकिंग योर कंडीशंस। ये सिर्फ इतनी बात है कि आप अपने कंडीशंस को तोड़ रहे हो। ये ऐसा नहीं है कि आप अपनी क्षमताओं से ज्यादा मेहनत कर रहे हो, क्षमताओं से ज्यादा कुछ कर रहे हो। कोई क्षमता उमता से ज्यादा नहीं करते हो आप। जो करते हो आपकी क्षमता में ही होती है। बस आप वितृष्णा हो जाते हो। आप दृष्ट और अनुश्रविक से वितृष्णा हो जाते हो। तो आप देखो, जीवन में जो भी सफल है वो वैराग्य की वजह से सफल है। जीवन की सारी सफलताएं, एक बच्चा मेहनत करके टॉप करता है, वो भी वैराग्य की वजह से करता है। आप आईएसपीसीएस बनते हो तो वैराग्य करके आप आईएसपीसीएस बनते हो। दुनिया में, भारत में कोई भी व्यक्ति जिसने आईएसपीसीएस के कंपटीशन में, कमीशन में वो पास किया होगा, वो बिना वैरागी होकर न किया होगा। बस वैराग्य का डेफिनेशन आप गलत करते हो। तो वैरागी को समझें, वैराग्य को अपने जीवन में उतारें। जब तक आप वैरागी नहीं होंगे, आप गृहस्थ भी अच्छे नहीं होंगे। लोगों ने तो वैरागी और गृहस्थ को दो अलग अलग मान लिया कि वैरागी अलग, गृहस्थ नहीं। एक सच्चा गृहस्थ वैरागी ही होता है, वरना अपने स्पॉस को वो धोखा दे रहा है, अपने पति या अपने पत्नी को धोखा दे रहा है। अगर आप वितृष्णा नहीं है आपके अंदर, तो आप अपने परिवार के साथ, अपने गृहस्थ के साथ, अपने 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 लोगों के साथ धोखा दे रहे हो। एक वैरागी ही होता है जो आपका साथ दे सकता है। अगर अगला आपका मित्र, आपका संबंधी वैरागी नहीं है, तो आप धोखे में हो, कभी भी धोखा खा सकते हो। इसीलिए वैरागी बनो, ताकि आप अच्छे से संसारिक बन सको, ताकि आप अच्छे से संसार और संसार के पार जा सको, दृष्ट और अनुश्रविक दोनों। अब मैं जाते जाते, कोई प्रश्न यदि आपके मन में है तो आप पूछ सकते हो। मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप कोई प्रश्न पूछते हो। बाकी सबसे यही कहूँगा कि क्लास के दौरान आप लोग वीडियो ऑन कर लेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अपने वीडियोस ऑन रखें और जो भी सवाल है वो हमसे पूछें, मैं समझ पाऊँगा। तो मैं आपके इस मेंटल कंडीशन को हम आंसर कर सकेंगे कि आपके कोई सवाल है, कहाँ पे आप फंस रहे हैं, कोई ऐसी कॉन्सेप्ट है जो आप कहीं पे क्लियर नहीं हो रहा है, तो आई विल मेक इट क्लियर। एक प्रश्न पूछना है गुरुजी। सिद्धार्थ बोल रहा हूँ, नमस्कार। हाँ हाँ सिद्धार्थ, बिल्कुल बिल्कुल। एक वैसे तो बड़ा बेसिक सवाल है क्योंकि ये पहले भी हम कवर कर चुके हैं, मगर वृत्तियों में स्मृति जो वृत्ति है उसमें जैसे आपने बताया क्लेश और क्लिष्ट अक्लिष्ट होती है, मगर प्रैक्टिकल लाइफ में प्रैग्मेटिकली अगर देखें तो स्मृति का बहुत काफी इंपॉर्टेंस वैसे होती है। मतलब एक तो हुआ मेमोरी से अटैचमेंट, तो गुड मेमोरी बैड मेमोरी वो एक अलग बात है, बट एक एक्चुअल उसमें कि आपको ड्राइविंग करनी है तो आपको वो मेमोरी से ही तो याद रहेगा ना कि ड्राइव कैसे हो रहा है, और एनी अदर एक्टिविटी। तो उसमें हम इसको कैसे समझ सकते हैं? ठीक है। एक तो सिद्धार्थ जी, हम
इस क्वेश्चन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि क्वेश्चन हम चाहते हैं कि आप लोग ऐसे सवाल पूछो। पिछले स्मृति के लेक्चर में लगभग मैंने ऐसे क्वेश्चंस को आंसर देने की कोशिश करी है। देखो, स्मृति से हम मुक्त नहीं हो सकते। हम स्मृतियों के बिना जिंदगी को चला नहीं सकते। स्मृतियां वृत्ति कब होती है? स्मृतियां वृत्ति तब होती है जब स्मृतियों में आपका फंसाव होता है। स्मृतियां अपने आप में आप उनसे मुक्त नहीं हो सकते हो। ना तो आप प्रमाण से मुक्त हो सकते हो, ना तो आप विपर्य से, ना तो विकल्प से। वृत्तियों से मुक्त नहीं होते, वृत्तियों को शांत करते हैं। जैसे समुद्र की लहरें हैं, हम क्या करते हैं? लहरों को शांत करते हैं। हम पानी से मुक्त थोड़ी हो जाते हैं। समुद्र की लहरों को शांत करना है। तो स्मृतियां जो लहरें, जो कंडीशनड पैदा करती है, जो आपके भीतर में संकुचन पैदा करती है, आपको लघु बनाती है, छोटा बनाती है, आपको सीमित करती जाती है, उससे हमें मुक्त होना होता है। एक एक टर्म यहाँ पे हम यूज करना चाहेंगे, एक शब्द है प्रतिभिज्ञा। प्रतिभिज्ञा, पता नहीं आप लोगों ने किसने इससे पहले सुना है, नहीं सुना है। एक दर्शन है काश्मीर शैव का, प्रतिभिज्ञान दर्शन। इसकी किताबें भी हैं, आपको बाजार में जाएंगे तो प्रतिभिज्ञान दर्शन की किताबें मिल जाएगी। ये हमारे त्रिक शास्त्र की या कश्मीर शैविज्म की एक बड़ी जानी मानी, आप ये कहें दर्शन है, या इन पर किताबें लिखी गई है, शास्त्र लिखे गए हैं। और प्रतिभिज्ञान का मतलब होता है मोक्ष, मुक्ति। जैसे निर्वाण हो गया, हम लोग बौद्ध लोग उसको निर्वाण कहते हैं, योगी लोग उसको वो कहते हैं कि हमें मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, है ना। निर्बीज समाधि कहते हैं हम लोग उसको, असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। उसी तरह से यही टर्म है जिसमें कश्मीर साहब के लोग उसको प्रतिभिज्ञान कहते हैं। अच्छा, मैं अब उसका अर्थ बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं ये प्रतिभिज्ञा शब्द में यहाँ क्यों बोल रहा हूँ। कश्मीर शैव के लेखाकार लिखते हैं, और वो भगवान शिव के मुख से उवाच है। तो कश्मीर शैव के विद्वान लिखते हैं कि हम भूल गए हैं, विस्मृत हो गए हैं कि हम कौन हैं। पूरा का पूरा शिव पुराण स्मृति के कॉन्सेप्ट पे है। अगर आपको स्मृति को समझना है तो आप शिव पुराण पढ़िए। शिव पुराण, जिसमें कि मां सती जब जन्म लेती हैं तो मां सती भूल जाती हैं कि वो आदि महाशक्ति है, आद्य महाशक्ति है। और भगवान शिव को बड़ा मेहनत करना पड़ा सती को याद दिलाने के लिए कि सती आप आदि महाशक्ति हो। जितना जब तक कि उसको समझ में आता, वो स्वयं को आग में जला चुकी थी दक्ष के यहाँ। पार्वती में जन्म लेती, पार्वती के जन्म में भी भगवान शिव सिखाते समझाते ही रह गए कि आप अपनी स्मृति को याद करो कि आप हो कौन, हु आर यू, मैं कौन हूं। पार्वती को बहुत बाद में याद आया कि वो ही सती थी। पार्वती को और बाद में याद आया कि वही आदि महाशक्ति है। प्रतिभिज्ञान के दर्शन में, कश्मीर शैव के दर्शन में स्मृतियों का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप स्वयं, हम कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि या शिवो हम, शिव, हम स्वयं शिव हैं। हमारी प्योरेस्ट चेतना शिव की ही चेतना है। हम उसी के एक्सपेंशन हैं, हम सभी शिव के ही एक्सपेंशन हैं। लेकिन हम भूल गए कि हम शिव हैं, हम विस्मृत हैं। और जब आपकी स्मृतियां लौटती हैं तो यार, अरे मैं तो स्वयं शिव था, मैं तो शिव हूं। मैं कहां अपने आप को राजेश समझ बैठ गया था, मैं कहां अपने आप को सिद्धार्थ समझ लिया था। जो जो कॉन्सेप्ट है स्मृति, हमारी स्मृति बनी हुई है, इसीलिए हम अध्यात्म की ओर जा भी रहे हैं। अगर आपकी स्मृतियां नहीं होती तो हम अध्यात्म की ओर अग्रसर भी नहीं होते। किसी जन्मों के संस्कार आपके हैं, जिसकी स्मृतियां आपके अंदर में है, और वो स्मृतियां आपको अध्यात्म की ओर खींचती हैं, ले जाती हैं बार बार। आप स्मृतियों से मुक्त तो कभी नहीं हो सकते हो। आपने कितने जन्म लिए, आपको आपकी चेतना में सारी स्मृतियां पड़ी हुई है, भले वो भूले हुए हैं।
लेकिन स्मृतियां स्मृतियां हैं, और स्मृतियां आपको धीरे धीरे डाइवर्ट करती हैं, आपको किसी खास दिशा में ले जाती है, आपको पता भी नहीं चलता है। लेकिन ये वही स्मृतियां हैं जो आपको किसी खास दिशा में लेके चली जाती है। स्मृतियां आपको रूल करती हैं, आपको लगता है कि आपकी चेतना रूल करती है, स्मृतियां रूल करती है आपको। और इसीलिए त्रिक शास्त्र में एक टर्म दिया गया, प्रतिभिज्ञान। प्रतिभिज्ञान का मतलब होता है प्रतिभिज्ञान, उसे अपना ज्ञान वापिस, जैसे कोई आदमी भूल गया हो, मैं उसकी याददाश्त चली गई हो और अचानक से उसका याददाश्त लौटता है, तो उसको कहते हैं प्रतिभिज्ञान। मैं भूल गया था, मुझे अचानक याद आया। इस इस फेनोमेना को प्रतिभिज्ञान कहते हैं। और इसी को उन लोगों ने मुक्ति कहा। अब देखो, मुक्ति की बहुत अलग व्याख्यान है। ऐसे ही मुक्ति का व्याख्यान आपको किसी दर्शन में नहीं मिलेगा। त्रिक दर्शन में मुक्ति का अर्थ है कि जो आप भूल चुके थे वो आपको याद आ गया। आप शिव थे, आप भूल गए, आप पशु बन गए। और किसी दिन आपको, आपका जब पाश हटेगा, जब पशु का पाश हटेगा, तो आप पति हो जाओगे, है ना? तो आप स्वयं शिव हो जाओगे। बस बात इतनी थी कि आप भूल गए। इसी को शिव पुराण ने एक नया, एक बहुत सुंदर शब्द दिया, मार। मार, म आकार र, मार। और मजे की बात है, मार का कॉन्सेप्ट बौद्धों में भी है। और इस मार को बताने के लिए बौद्धों ने क्या किया, एक बड़ा सा राक्षस, दांत वांत। आप कभी तिब्बती मंक वो गए हो किसी जितने भी इनके वो होते हैं, मठ होते हैं, है ना? जो इनके मठ में जाओगे, इनके विहार में, मंदिरों में जाओगे, तो आप हैरान होगे, ऐसे बड़े बड़े राक्षस बने हुए हैं, चित्र बने हुए हैं बड़े बड़े राक्षसों के। ये जितने बौद्ध, तिब्बती बौद्ध ले लो, थाई बौद्ध ले लो, थेरवादीज ले लो, जापानीज ले लो, ये सारे जितने भी है ना, इनके मंदिरों में, भारत में बहुत सारे मंदिर है ऐसे। तो ऐसा राक्षस सा बना हुआ है आदमी, ऐसे लाल लाल आंखें उसकी, बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें, राक्षस ऐसा। पूछोगे पुजारी से कि ये ऐसे राक्षस जैसे आदमी को आपने लगा रखा है, ये कौन है? तो वो बताएंगे मार है। और अगर आप बौद्धों के ग्रंथ को पढ़ोगे, तो बौद्ध के ग्रंथ में भी है कि उस पूर्णमासी की रात में, उस बुद्ध पूर्णिमा में, जब सुजाता ने खीर दिया था, खीर खाने के बाद भगवान बुद्ध ने मार को हराया। मार को, द वर्ड ही यूज, द मार, मार को हराया। और ये मार जो है, ये मार शब्द कहां से आया है? ये शब्द आया है अपस्मार से। अपस्मार शब्द जो है, जो पूर्ण शब्द है, वो है अपस्मार। अपस्मार एक मानसिक रोग है, डिजीज है, एक साइकोलॉजिकल डिसीज है। जिसको अपस्मार हो जाता है, वो सब चीज भूल जाता है। आदमी का उम्र होता है तो नहीं, भूल जाता है सब कुछ अचानक से, उसको कहते हैं अपस्मार हो गया उसको। इसको साइकोलॉजी में, क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपस्मार कहते हैं। ये शब्द जो मार आया है, वो अपस्मार से आया है। अच्छा, आप लोगों ने वो देखा होगा, भगवान नटराज को नृत्य करते हुए देखा होगा, है ना? वो एक नटराज, भगवान शिव का एक एक मूर्ति है जिसमें भगवान शिव नटराज होते हैं, नृत्य करते हैं। कभी गौर से, अगर अगर आप लोग साथ साथ गूगल खोल सकते हो, अगर आप लोग लैपटॉप में हो और साथ साथ पैरेलली गूगल खोल सकते हो, तो आप गूगल में नटराज इमेजेस में जाके देखो। अभी आप जा सकते हो तो जाके देखो, नटराज इमेजेस में जा करके। भगवान नटराज जो है, वो एक एक आदमी के ऊपर नाच रहे हैं। मतलब नीचे में कोई बंदा है, उस पे खड़े होकर के नाच रहे, उस पर एक पैर उनका उस पे, और वो एक पैर उठाए हुए नाच रहे। आप गूगल करके देखोगे, आपको पता लग जाएगा। तो भगवान नटराज किस पे नाच रहे हैं? एक आदमी ऐसा लेटा सा पड़ा हुआ है और उसके ऊपर चढ़ के वो नृत्य कर रहे हैं। शायद आप लोगों ने अब तक गौर ना किया हो कि नटराज नाच किस पे रहे हैं। नटराज नाच रहे हैं, ये जो नीचे जो बौना सा आदमी पड़ा हुआ है, जो नीचे लेटा हुआ है, ये है मार। ये है मार। ये आप देख सकते हो इस फोटो में, नीचे इनके पैर के नीचे
एक आदमी लेटा हुआ है, ये उसकी आंखें हैं, नाक है, देख रहे हो, इसका सर है, ये हाथ है, ये पैर है ना, ये दूसरा पैर है। ये जो आदमी लेटा सा दिख रहा है, या और आप किसी भी फोटो में आप देख सकते हो, तो ये जो नीचे लेटा हुआ है उसको कहते हैं मार। अब शिव पुराण की मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। छोटी सी कहानी ये है कि जब भगवती को, माँ पार्वती को याद ही नहीं आ रहा था, माँ पार्वती ध्यान में बैठती थी, उनको सती के कुछ कुछ ग्लिम्स आते थे, पर वो भूल जाती थी। फिर अगले ही दिन वो साधना पे बैठती थी, सब भूल जाती थी, और बड़ा परेशान हो, बड़ा परेशान हो। और उस समय भगवान शिव अपना वेश बदल करके एक साधु के वेश में आकर के पार्वती को ज्ञान दे रहे थे। पार्वती को वो शिव बन के नहीं, बल्कि एक साधु बन करके, उनका गुरु बन करके पार्वती को आगे की यात्रा करवा रहे थे। तो ये समस्या पार्वती की अटक गई, उनको याद ही ना आए पुरानी। तो भगवान शिव जो है, उन्होंने कहा कि ठीक है, देखना पड़ेगा क्या बात है। तो उसका एक नाट्य रूपांतरण, या उसको कहो कि उसका एक पिक्टोरियल, हम कैसे आपको समझाएं। मार कोई व्यक्ति नहीं है, कोई हाथ पैर वाला कोई बंदा नहीं है कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है वो, ठीक है। वो विस्मृति है, वो अपस्मार है ना, वो भूल जाने की प्रवृत्ति है। उसको एक नाटकीय रूप ले लिया कि वो हाथ पैर का वो इंसान है। तो शिव पुराण में है कि भगवान शिव और मार दोनों आमने सामने होते हैं, और मार कहता है भगवान शिव को कि आप होंगे भगवान, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते। मार को कोई मार नहीं सकता है। विस्मृत हो जाने की, एक तरह से हम अगर किसी चीज को भूलते हैं तो वो आशीर्वाद है। हमें सब चीज सब समय याद रहे तो ये बहुत मुश्किल बात है ना। हर टाइम आपको हर चीज याद रहे, अरे आज की कल की ही सारी बातें हर टाइम आपके दिमाग में बना रहे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोगों का माइंड का, हम लोग की चेतना का कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि हम लोग में विस्मृति एक पार्ट है, कंडीशनड है, और हम लोग कंडीशनड तरीके से जो आपकी मनस चुनाव करती है, वो कुछ स्मृतियां रखती है, कुछ स्मृतियां छोड़ देती है। उस वो कंडीशन हम खुद ही निर्मित करते हैं, हमारे आदतें निर्भर करती है, बनाती है उस कंडीशन को। तो मार कहता है भगवान शिव को, आप तो मुझे मार ही नहीं सकते, क्योंकि आपने ही मुझे बनाया, अमर बनाया है। मैं आपका अमर पुत्र हूं, और आप मुझे नष्ट नहीं कर सकते। और ये बात भी सही है, अगर मार को ही नष्ट कर दिया जाए तो लोग कभी कुछ भूले ही नहीं, और इस ज्यादा विकृत दशा है। तो इसलिए शिव उसको मार भी नहीं सकते थे। तो भाई अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। तो भगवान शिव को एक आइडिया आया, उन्होंने एक उपाय लगाया, और वो अपना डमरू बजाने लगे। डमरू बजाने लगे और नृत्य करने लगे। जब वो डमरू बजाने लगे और नृत्य करने लगे, तो क्या हुआ कि मार कमजोर होने लगी। अब इस बात, ये नाट्य रूपांतरण है, मैं पीछे आ रहा हूं, इसका अर्थ बताऊंगा, इसका रहस्यात्मक अर्थ में बताऊंगा। अब ये जो मार है वो कमजोर होकर के जमीन पे गिर जाता है, और भगवान डमरू बजाते रहते हैं, डमरू बजा करके वो उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उसको कंट्रोल कर लेते हैं। और इधर पार्वती माता वो नाद सुन रही हैं, डमरू सुन रही हैं, मृदंग सुन रही हैं, घंटा शंख मृदंग वो नाद साधना कर रही हैं, और उनको ये विस्मृतियां, जो वो भूल गई थी कि वो कौन है, वो रियल में कौन है, वो आदि महाशक्ति है। वो जैसे जैसे भगवान डमरू बजा रहे हैं, भगवान नाद को क्रिएट कर रहे हैं, और मार को उन्होंने अपने वश में रखा हुआ है, वैसे वैसे पार्वती को उनकी स्मृतियां लौट रही हैं, और उनको ख्याल आ जाता है कि उन पिछले जन्म में वही सती थी। उनको याद आ जाता है कि वही आदि महाशक्ति है। ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है शिव पुराण का, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। पूरा शिव पुराण का ये क्लाइमैक्स है, क्योंकि पूरा शिव पुराण कहीं ना कहीं इसी परेशानी, इसी विस्मृति, इसी अपस्मार के कारण, इसी मार के कारण पूरी पुराण लिखी गई है। भूल गई पार्वती, भूल ही गई थी कि वो कौन है।
अब पूरा का पूरा शिव पार्वती की कथा ही इसी बात पे है कि पार्वती भूल गई थी। और वो क्लाइमेक्स था जिसमें कि वो मार्ग के ऊपर खड़े होकर के नृत्य कर रहे थे। इसीलिए इस रूप की पूजा होती है, क्योंकि ये शिव पुराण का क्लाइमेक्स है। इसी इसी रूप की पूजा होती है। यहीं पे मार्ग गिर जाता है और माँ भगवती को समाधि लगती है। माँ भगवती को पता लगता है कि वो कौन है, उनको मैं कौन हूं इसका पता लगता है। तो सिद्धार्थी स्मृतियों के अर्थ को समझ पा रहे हैं आप, कितना वैल्यूबल है ना। स्मृतियां निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। हम स्मृतियों को बहुत कैटेगराइज कर दिए कि हम जो याद रखते हैं, जो हम हमारे पास इतनी कहानियां हैं, इतने जन्म आपने लिए, हमने लिए, और जन्मों से भी पहले जो वास्तविक हमारा वास्तविक स्वरूप है, या हम आत्मा है, परमात्मा जो भी है, उन सब की स्मृतियां आपके अंदर बनी हुई है। लेकिन आप कंडीशनड हो चुके हो मार से, अपस मार से। और ये कंडीशन कैसे दूर होगा? जब आप नाद सुनोगे, भीतर के नाद को जब आप सुनोगे, भगवान शंकर के डमरू को सुनोगे, घंटा नाद, और भीतर के अनहद नाद को आप सुनोगे, तो ये अनहद नाद आपको वो विस्मृति से, वो अपस्मार से दूर करेगी आप। और आप अपने वास्तविक स्मृति की, आप वास्तव में कौन हो, उसका प्रतिविज्ञान होगा। इसी को प्रतिविज्ञान दर्शन कहते हैं। तो शिव पुराण से ही प्रतिविज्ञान दर्शन काश्मीर शैव वालों ने निकाला है। तो ये है प्रतिविज्ञान दर्शन। तो इसीलिए ये स्मृतियां, हम कौन सी स्मृतियां सरल है, कौन क्लिष्ट है, कौन सी स्मृतियां हमें वर्ण करना चाहिए, कौन सा छोड़ना चाहिए, ये हम वैराग्य और पर वैराग्य में समझने की कोशिश करते हैं। इसमें अब ये तो वृत्तियां पंच तय क्लिष्टा अक्लिष्टा, क्लिष्ट भी है, सरल भी है। लेकिन जब हम स्मृति वृत्ति को चुनते हैं, तो हम जब उस कंडीशन को अपने अपने आप को कंडीशन लेस करते हैं, अपर वैराग्य में हम एकेंद्रिय से हम यात्रा, यतमान एकेंद्रिय होते हुए जब हम वशीकार तक जाते हैं, तब उस कंडीशन से अपने आप को फ्री करते हैं। और जब वो कंडीशन फ्री करते हैं, तब हमें याद आता, पता लगता है कि अच्छा, प्रकृति पुरुष, हम सत्य से परे जा सकते हैं। ये है, ठीक बात है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे पूर्ण करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद आपके धैर्य के लिए। बड़े धैर्य से आपने सुना, और अच्छा लगता है कि सारी बातों को समझने के लिए आप प्रयास करते हो, अपने माइंड को मनन, उस पर कोशिश करते हो समझने की। हम जानते हैं बहुत सारी बातें जटिल होगी, बहुत सारी बातें थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जब आप मेरे साथ घंटे डेढ़ घंटे बैठ के मनन करते हो, सोचते हो, तो ये भी राजमार्ग है। इसके बारे में आगे हम बताएंगे कि आपका मेरे साथ बैठ करके ये जो मनन करना है ना, किसी विषय पर चिंतन करना है, ये भी राजयोग का एक मेडिटेशन है, ये भी रॉयल पाथ है। तो आप सब लोगों को राजमार्ग के लिए धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरु जी सेशन, और सभी लोगों का जो कि आज बहुत धैर्य से आप सभी ने सुना। एंड थैंक यू सिद्धार्थ जी फॉर द क्वेश्चन। और इसी प्रकार के जो भी प्रश्न हो वो आप सत्र में तो पूछ ही सकते हैं। आप बाद में भी, अगर कई बार होता है कि सत्र के बाद भी कुछ क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं, तो उनको आप हमें लिख करके भेज सकते हैं, ताकि वो हम अगले सत्र में जरूर लेने का प्रयास करें। और जाते जाते मैं चाहूंगा कि सभी लोग अपनी वीडियोस को बस 10 सेकंड के लिए ऑन कर लें, ताकि हम सभी की एक छोटा सा पिक्चर ले सकें आज की सेशन की मेमोरी के लिए। और वीडियोस तो वैसे ही रिक्वेस्ट सारे ये भी, क्लास में ऑन रखना चाहिए वैसे आप। एक रिक्वेस्ट ये भी है कि क्लास के दौरान, क्योंकि टू वे कम्युनिकेशन होता है, और जब हम, जैसे कि गुरुजी ने बताया कि जब हम आपको देख रहे होते हैं, तो कई कई बार ऐसा होता है कि आप प्रश्न पूछना चाह रहे हैं लेकिन पूछ नहीं पा रहे हैं, और सामने वाले को पता चल जाता है कि आपको प्रश्न क्या है। ऐसा भी होता है। तो इसलिए प्रयास करें कि थोड़ा सा प्रिपेयर रहें, हम अपनी वीडियोस को ऑन करके रखें तो और भी अच्छा रहेगा। ये छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी के लिए।
ये मुस्कान जो अभी दिखाई दी है, मुस्कान पूरी क्लास में दिखाई दी तो आदमी जिंदा रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू।